Okay, welcome to all in TechUp Grade classes. First of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am Mechanical Engineering faculty and I have done MTech from IIT Delhi in Production Engineering branch in 2013 and my latest gate rank is AIR 192 in GATE 2020 and I am also Engineering Services exam written qualified and I have 9 plus years of teaching experience for GATE and Engineering Services exam and presently I am working as an assistant professor in Government Engineering College Udaipur under TechQ project, correct? So in this video lecture series, I am going to discuss with you strength of material and this is lecture number 2 of module 1. So let's crack the gate and once again welcome to all. Now in this lecture I am going to discuss with you assumptions made in song, correct? Actually अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि if we talk about realistic problem means suppose if we have a shaft, yes or no? Let's see here. If we have a shaft and in this shaft we have one geared or pulley, correct? This is your shaft, correct? And sometimes the shaft is made up like this, stepped shaft. Why we make step? Because here we want to fit this shaft in bearings. Is it clear? तो bearing hub में इसको fix करने के लिए दोस्तों यहाँ पे step बनाया जाता है at both ends. Is it clear like this? Like this. And here we have bearings, bearing hub. Simply we can say bearing hub, where we fix the shaft or we hold the shaft, correct? Like this. And its symbolic representation is like this. It can be represented like this. Is it clear? And now अगर यहाँ पे हमें एक पुली फिट करना है या कोई गियर फिट करना है then for this here we make a keyway, yes or no, like this. Here we cut a keyway. Is it clear? So you can see here this is our actual shaft, yes or no, this is our actual shaft and here we fit a pulley like this. Correct? Now for this, for preventing relative motion between the pulley and shaft, here we provide a key which half portion is fitted in shaft and half portion is fitted in pulley, yes or no? And with the help of this key, we can prevent the relative motion, yes or no? So the my question is, this is realistic problem. This is realistic shaft, but in case when we study shaft in strength of material, then here we assume our shaft is looking like this. It is looking like this, yes or no? Then you can see this. Here we have very huge difference in this idealistic model and this realistic model, yes or no? There is realistic shaft, yes or no? दोनों shaft में difference है and the difference is here we have discontinuity, here we have discontinuity, yes or no? And similarly here we have discontinuity, and whenever we have discontinuity in any structural member or machine element, then we have stress concentration, yes or no? But when our member is like this is called as prismatic member. Is it clear? This is called as prismatic, means uniform cross section throughout the length, yes or no? In this member there is no stress concentration. Is it clear? So if we assume this realistic thing for theoretical analysis, then it is very difficult to analyze it, correct? Theoretic actual problem actual में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे here we have many variables, यहाँ पे बहुत सारे variables हैं. Because of this step here we have face higher stress and यहाँ पे discontinuity की वजह से भी stress ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे variability बढ़ जाती है. And whenever we have more variable, then
द स्टडी ऑफ दीज थिंग्स इज वेरी डिफिकल्ट थेरेटिकली, ऐसा नो, थेरेटिकली उसे स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इस एक्चुअल मॉडल को थेरेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं अजम्पशंस, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट अजम्पशंस यूज किया, द मटेरियल इज assumed to be homogeneous and isotropic। तो दोस्तों इस डिस्कशन से आपको पता चल गया होगा कि why we need assumptions, assumptions की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि इस एक्चुअल प्रॉब्लम में वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है, जिस सारे वेरिएबल्स को कंसीडर करके थ्योरेटिकल स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यस यू कैन स्टडी वेरी वेल विद हेल्प ऑफ मैथमेटिकल मॉडल, यस और नो, और विद हेल्प ऑफ एनसिस सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू आप इसको इजिली स्टडी कर सकते हो, बट थ्योरेटिकली इसको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। तो थ्योरेटिकली कैसे स्टडी किया जाए, तो थ्योरेटिकली स्टडी कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ टेकिंग सम अजम्पशंस, एंड उन अजम्पशंस में क्या क्या अजम्पशंस है, यू कैन सी हियर। The first one, that is material is assumed to be homogeneous and isotropic, correct। और ये सारे assumptions वन बाय वन दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूँ लेटर स्लाइड में, करेक्ट है। नेक्स्ट, द मटेरियल मस्ट बी ओबेज हुक्स लॉ, correct, it means the material must be linearly elastic, the member is assumed to be prismatic, the member is subjected to static load, the effect of true stress and true strain is neglected, and the member is assumed to be deformable, and the effect of body force are neglected in the analysis, and the last one, that is Saint-Bernard principle, is valid throughout the analysis। These are the few assumptions which are applicable in throughout the strength of material। आप कोई भी टॉपिक स्टडी करोगे तो ये एटलीस्ट ये assumptions आपके जरूर होने चाहिए, तभी आप जाकर उसको स्टडी कर पाओगे। हाँ, कुछ और टॉपिक आने वाले हैं, फर्दर टॉपिक्स में कुछ मोर अजम्पशंस आएंगे, उनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे वन बाय वन विथ रिस्पेक्ट टू टॉपिक, यस और नो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अजम्पशन है दैट इज द मटेरियल इज अज्यूम्ड टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। तो इंडिविजुअली अगर हम देखें व्हाट इज होमोजीनियस एंड व्हाट इज आइसोट्रोपिक, देन हमको इजिली आइडिया लग जाएगा कि भाई ऐसा मटेरियल होता क्या है। नाउ लेट्स सी, इफ वी टॉक अबाउट होमोजीनियस मटेरियल, देन वी कैन से इट इज नथिंग बट इट इज अ मटेरियल इज सेड टू बी अ होमोजीनियस। कोई भी मटेरियल आपको होमोजीनियस कहलाता है व्हेन इट एक्सिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज, करेक्ट, व्हेन इट एक्सिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज at any point in a given direction, yes or no, correct। For example here I am going to draw a material like this. Suppose we have a material like this, any material, and suppose if we consider this is point A, and in this point here, if with respect to this point here, we have three mutual perpendicular axes, these are the directions, is that clear, correct, like this। Now you can see here, if suppose this is direction of, this is x direction, this is y direction, and this is z direction, suppose in direction in x direction here we have elastic property that is E1, in the direction y here we have elastic property E2, and in direction z here we have elastic property 3, correct। At this point, at point A, here we have three mutual perpendicular direction, and in each direction here we have different elastic properties like this। Now if we assume another point somewhere in this body, then suppose this is point B, and now again if I find the elastic property along the x direction, elastic property along the y direction, and elastic property along the z direction, then here we see in the x direction and y direction and z direction. So you can see here along x direction, again here we can get E1, along y direction again here we can get E2, and along z direction array again here we can get E3, yes or no। Okay, let's see another point, suppose this is point C, and again यहाँ पे दोस्तों आप along x direction, y direction and z direction के along अगर हम elastic properties को represent करें, then you can see here it is looking like this, correct। Here again we can get E1 along x direction, E2 along y direction, and E3 along थर्ड डायरेक्शन। तो दोस्तों इस डिस्कशन से क्या कंक्लूजन निकला कि द इलास्टिक प्रॉपर्टी इज यूनिफॉर्म और सेम थ्रू आउट द मटेरियल एट ए गिवन डायरेक्शन। अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें, देन थ्रू आउट द मटेरियल हियर वी हैव एवरीवेयर इवन इलास्टिक प्रॉपर्टीज, यस और नो, correct, corresponding to A, B and C position, and similarly with respect to Y, here we have E2, E3 and
sorry, E2 and E2 corresponding to A, B and C position, yes or no? तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई भी मटेरियल होमोजीनियस कब कहलाता है? व्हेन इलास्टिक प्रॉपर्टीज, व्हेन इलास्टिक, एक तो एक प्रॉपर्टी आपको एक पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन कि केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मटेरियल शुड बी सेम, यस और नो? केमिकल कंपोजिशन और एटॉमिक स्ट्रक्चर शुड बी सेम थ्रू आउट द मटेरियल, ये होना चाहिए पहली बात। दूसरा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर, यहां पे मैं लिख देता हूं, चलो नोट करके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों याद रखना, ये कई बार डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करेक्ट है? यू कैन सी हियर, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर, इलास्टिक प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है? ई के म्यू जी, करेक्ट? इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर independent of, elastic properties are independent of position but depends upon direction, yes or no? इलास्टिक प्रॉपर्टीज दोस्तों क्या होती हैं? इट दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन बट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को दोस्तों हम कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस मटेरियल। और ऐसे मटेरियल का एग्जांपल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो वुड ऐसा मटेरियल है जो कि होमोजीनियस होगा, ऐसा ना, और भी बहुत बहुत सारे हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम सॉलिड मटेरियल की बात करें तो वुड एक ऐसा मटेरियल है जो कि होमोजीनियस होता है, थ्रू आउट द मटेरियल सेम कॉम्पोजिशन मिलेगा, करेक्ट है, बट डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं वुडन लॉग की बात करूं, सपोज दिस इज वुडन लॉग, मतलब पेड़ का एक टुकड़ा है, समझो आप, एक कोई ट्री है उसका एक टुकड़ा है, दिस इज सिलेंड्रिकल वुडन लॉग, और आपने देखा होगा कि इसमें कुछ इस तरीके से ग्रेन्स होते हैं, यस और नो? तो दोस्तों आप देखोगे कि along the longitudinal direction here we have different elastic property, and similarly across the longitudinal direction here we have different elastic property, yes or no? तो इस तरीके के मटेरियल को कह देते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज, बट आप ये जो ग्रेन्स देख रहे हो, दीज ग्रेन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मटेरियल, इसलिए इसे हम होमोजीनियस तो कह सकते हैं, बट दिस इज नॉट कॉल्ड एज ए आइसोट्रॉपिक मटेरियल, यस और नो? तो आई थिंक दोस्तों अब आपको ये पता चल चुका होगा कि होमोजीनियस मटेरियल होता है क्या। नेक्स्ट अब बात करते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल की। तो लेट्स सी हियर, इफ वी टॉक अबाउट आइसोट्रॉपिक मटेरियल, then a material is said to be isotropic, a material is said to be isotropic when it exhibit same elastic properties in all direction, same elastic properties in all direction, yes or no? सभी डायरेक्शन में अगर इलास्टिक प्रॉपर्टीज आपको सेम मिल रही हैं एट ए गिवन पॉइंट, देन दिस इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक मटेरियल, करेक्ट? इट मींस when a specific load is applied at any point in the xyz axis, isotropic material exhibit same strength, same stress, same strain, same Young's modulus and hardness in all xy and z direction. This kind of material is called as isotropic. Again let's see here, मैं फिर से आपको बताता हूँ with this body. Suppose if we consider a point A, then along the x direction, suppose this is x and y direction, x y and z direction में अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी देखें, then here you can get E1, here you can get E1 and here you can get E2. But if we change the position, suppose from A to B position में जाते हैं, again if we see in the direction of x, y and z, then here we can get E2, E2 and again here we can get E2. and similarly किसी और थर्ड पॉइंट C पे देखें हम, तो अगेन along x, y and z डायरेक्शन में आप देखोगे तो आपको कैसी प्रॉपर्टी मिलने वाली है? E3, E3 एंड E3। इसका मतलब क्या हुआ कि एट ए गिवन पॉइंट द इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर सेम, चाहे वो x एक्सिस हो या y एक्सिस हो या z एक्सिस, किसी भी एक्सिस में आप चले आओ, आपको इलास्टिक प्रॉपर्टीज सेम मिलने वाली है। बट इफ वी चेंज द पोजीशन फ्रॉम A to B, then elastic property will changes, and again at this point here we can get different elastic property as compared to A point, but these properties are uniform again along x, y and
जेड डायरेक्शन, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में फिर से सेम मिलने वाली है। तो ऐसे मटेरियल को दोस्तों हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक मटेरियल। और इसके लिए एग्जांपल्स क्या क्या है, मेटल्स है, ग्लासेस है, मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स, पॉलीमर्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो सिंपली हियर वी कैन से, अगर मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट आपको दे दूं तो सिंपली क्या कह सकते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर independent of direction. Elastic properties are independent of direction but depends upon पोजीशन। यस आर नो, ये पोजीशन पे डिपेंड करता है और ये इंडिपेंडेंट होता है डायरेक्शन के। यस आर नो, इसे कह देते हैं हम आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो एक और टर्म आता है दोस्तों, अब अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को मर्ज कर दूं, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक नया मटेरियल आता है जिसे कहते हैं हम homogeneous and isotropic material. And in this material you can see here, if we talk about point A along xyz direction, then here we can get elastic property, that is E and E. And similarly at point B, again if अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों along x y and z direction, then again here we can get same elastic property. तो आप देख रहे हो कि throughout the material in all direction, कहीं भी मटेरियल इस बॉडी के किसी भी सेक्शन में आप चले जाओ और किसी भी डायरेक्शन में देखो, हियर यू कैन गेट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो सिंपली कहता है कि अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक व्हेन इट एग्जिबिट सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन थ्रू आउट द मटेरियल। करेक्ट है, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी सेक्शन में, कहीं भी चले जाओ, आपको सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज मिलने वाली हैं। देन दीज आर कॉल्ड एज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। एंड जितने भी कन्वेंशनल मेटल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। अब दोस्तों इस अजम्पशंस की हमें नीड क्यों पड़ी, क्योंकि अगर आपने बेंडिंग स्ट्रेस एनालिसिस पढ़ा हो तो आपको आइडिया हो कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, m upon I इक्वल टू सिग्मा अपॉन y इज इक्वल टू E by R। करेक्ट है, हमने बीम के लिए एक क्वेश्चन डिराइव किया है। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं उनको आइडिया होगा, अदरवाइज जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं वो आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट सी हियर दिस 1 by R, R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसके रिस्पेक्ट में ये बीम बेंड हो रहा है लाइक दिस। करेक्ट है, किसी सेंटर पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, ये बीम बेंड हो रहा है। करेक्ट है, तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस होती है न्यूट्रल फाइबर की, दिस इज कॉल्ड एज R। यस आर नो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज इक्वल टू m अपॉन EI। अब आप देखो यहाँ पे, अगर ये यंग्स मॉडुलस डिफरेंट होता है एट ए डिफरेंट सेक्शन ऑफ द बीम, then here we can get different radius of curvature, and if we can get different radius of curvature then this analysis is very difficult to analyze। yes or no, इस प्रॉब्लम को स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों। करेक्ट है, तो अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें कि हमारा मटेरियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक है तो ये यंग्स मॉडुलस थ्रू आउट द मटेरियल सेम होगा। एंड अगर यहाँ पे यंग्स मॉडुलस थ्रू आउट द मटेरियल सेम है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी सेम होगा, और हम इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इजीली स्टडी कर सकते हैं। यस आर नो, तो दोस्तों आई थिंक आपको आइडिया लग चुका होगा कि व्हाट इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। दिस इज आवर फर्स्ट अजम्पशंस, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। अब हमने यहाँ पे होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक की बात करी, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं एनाइसोट्रोपिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो लेट्स सी, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल आर दोज मटेरियल्स which are also named as triclinic material। correct, and simply if we define, a material is said to be an isotropic material when it exhibit different elastic property in all direction। is it clear? different elastic properties in all direction। yes or no, these materials are called as, मतलब अगर हम कोई बॉडी एज्यूम करें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, सपोज यहाँ पे जाओ x y एंड z, तो इन 3 डायरेक्शंस में डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज आपको मिलने वाली है। करेक्ट है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। यस और नो, और ये किसकी वजह से एनाइसोट्रोपिक होता है? बिकॉज ऑफ अनसिमेट्रिकल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। अगर हम मेटल की बात करें
तो आपने देखा है यूनिट सेल पढ़ा, ये सानो, अगर आपने कभी यूनिट सेल के बारे में पढ़ा हो, बीसीसी, एफसीसी, इनके बारे में. नाउ यू कैन सी हियर इफ वी टॉक अबाउट BCC or FCC, then here we have three mutual perpendicular directions. Yes or no? Excuse me. थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. तो आप देखोगे कि हर एक डायरेक्शन में इसमें डेंसिटी अलग होगी, लीनियर डेंसिटी अलग होगी, प्लेनर डेंसिटी अलग होगी, जिसकी वजह से सपोज यहाँ पे डायरेक्शन आप क्या पढ़ोगे, 100 010 010 करेक्ट. सिमिलरली क्या डायरेक्शन हो सकता है, 110 101 011 करेक्ट, और 111 डायरेक्शन. ऐसे और भी कई सारे डायरेक्शन हो सकते हैं. तो आप इस फैमिली में देखो या इस फैमिली में देखो या इसी, अगर मैं इन थ्री म्यूचुअल डायरेक्शंस के बारे में बात करूं, मींस ये तीनों डायरेक्शन है क्या, मैं आपको बता दूं. दिस इज कॉल्ड एज 100, यस आर नो, 100. एंड सिमिलरली अगर मैं यहीं से इस डायगोनल को ज्वाइन करूं, दिस इज कॉल्ड एज 110. एंड सिमिलरली यहीं से मैं इसको ज्वाइन करूं तो 111, सॉरी, अगर इसको हम ज्वाइन करें दोस्तों, लेट्स से हियर दिस वन, सपोज दिस इज एक्स वाई एंड जेड, तो ये क्या कहलाएगा, ये दिस इज कॉल्ड एज 110 डायरेक्शन, यस आर नो. एंड सिमिलरली अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं इस डायगोनल को, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, 111 डायरेक्शन, यस आर नो, करेक्ट. तो ये थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस है. तीनों डायरेक्शन में दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट एटम्स मिलेंगे. डिफरेंट एटम्स की वजह से इसकी लीनियर डेंसिटी डिफरेंट मिलेगी, एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट लीनियर डेंसिटी हियर वी कैन गेट डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टी. तो कोई सपोज अगर आपका मटेरियल है कुछ लाइक दिस, एक थ्री डायमेंशनल एक सीट है समझो, तो इसमें अगर वन डायरेक्शन का ओरिएंटेशन इधर है, तो इस डायरेक्शन में डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज मिलेगा, इस डायरेक्शन में डिफरेंट, और इस डायरेक्शन में डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज मिलने वाली हैं. तो इस मटेरियल को हम क्या कह देते हैं, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल, यस आर नो, करेक्ट. Now, in other words, material is said to be anisotropic when it exhibit different elastic properties in different direction. ये already मैंने आपको बता दिया. And the mechanical properties of anisotropic material depends upon the orientation of materials. Crystal इन मटेरियल के क्रिस्टल के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है. एंड व्हेन कंसंट्रेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस. यहाँ पे जो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंसंट्रेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी डिफरेंट होता है इन डिफरेंट डायरेक्शन. इज इट क्लियर? और इस एनाइसोट्रोपिक मटेरियल का एग्जांपल हो सकता है वुड, रॉक, कंपोजिट्स, करेक्ट. ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर हम वुड लॉक की, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आपको डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज मिली थी डिफरेंट डायरेक्शन में. एक्स वाई डायरेक्शन में डिफरेंट इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, यस और नो. रॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी रॉक्स क्या होगा, ऐसे लेयर बाई लेयर बनेगा, तो डिफरेंट लेयर में आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं. कंपोजिट्स के केस में भी आपको पता है कि अगर फाइबर का ओरिएंटेशन ऐसा है, तो इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग होगी और इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज अलग होगी, ये सानो. तो ऐसे मटेरियल को दोस्तों हम कह देते हैं एनाइसोट्रोपिक मटेरियल, करेक्ट. और हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग कोई भी मटेरियल एनाइसोट्रोपिक अज्यूम नहीं करते. नेक्स्ट आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज मटेरियल मस्ट बी ओबेज हुक्स लॉ. अब इसके कहने का मतलब क्या है, सो लेट्स सी हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम. इज इट क्लियर? नाउ यू कैन सी हियर this is stress versus strain diagram like this. This point is called as YTS, yes or no? And this is UTS. Is it clear? This is UTS. तो दोस्तों आप देखो, this is proportional limit. Is it clear? This is proportional limit, and up to this limit, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, in this here we have stress is directly proportional to strain. This is Hooke's law, and this is a linear relation. Simply here we can write E times of epsilon. ये आपका जो ग्राफ प्लॉट हुआ है इन बिटवीन स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेस एंड दिस इज स्ट्रेन, यस और नो. तो यहाँ पे सपोज अगर मैं इसे कह दूं, सपोज दिस इज y एंड दिस इज x, करेक्ट है दोस्तों. तो सिंपली हम लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू mx where m is a slope of this curve. तो simply Young's modulus is also slope of this curve, yes or no.
यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज लीनियर इक्वेशन, यस और नो। तो सिंपली यहाँ पे हम कहते हैं कि हम द मटेरियल मस्ट बी ओबेज हुक्स लॉ एंड it must be linearly elastic, yes or no, it must be linearly elastic, and the loading must be done under loading must be done under elastic limit, yes or no। करेक्ट है दोस्तों। तो जो लोडिंग आप करने वाले हो वो अंडर इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, क्योंकि इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड अगर आप चले जाते हो तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिगिंस हो जाएगा। करेक्ट। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में दोस्तों रिकवरी नहीं पॉसिबल होती आफ्टर आफ्टर अनलोडिंग, यस और नो। करेक्ट है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि जो भी हम लोड अप्लाई करेंगे दैट शुड बी अंडर इलास्टिक लिमिट एंड द मटेरियल मस्ट बी बिहेव लाइक लीनियरली इलास्टिक मटेरियल, यस और नो। करेक्ट। दिस इज अनदर अजम्पशंस। करेक्ट। नेक्स्ट आता है द मेंबर इज अज्यूम टू बी प्रिज्मेटिक। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। वंस अगेन मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिर से। यहाँ पे हमारे पास एक शाफ्ट है, इट इज लुकिंग लाइक दिस एंड दिस इज अनदर शाफ्ट। Like this, correct, and here we have a keyway। correct, now you can see here in this shaft, this is shaft 1 and this is shaft 2। correct, then you can see here a member is said to be prismatic when here we have uniform cross section। क्या होना चाहिए? it must be have uniform cross section throughout the length। If we have uniform cross section throughout the length, then we can say our member is prismatic। And in this case of shaft 1, here you see throughout the length, here we have uniform cross section, yes or no? If its cross section is circular, then this is uniform throughout the length, yes or no? But in this case, you can see here we have step, here we have keyway, and this step and keyway indicates the shaft is not uniform, yes or no? Is it clear? यहाँ पे थ्रू आउट द लेंथ सेम यूनिफॉर्म प्रिज्मेटिक शाफ्ट नहीं है ये। here we have, suppose here we have d1 diameter and here we have d2 diameter, yes or no? Is it clear? And at this section here we have different diameter and here we have a section cut section, yes or no? तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी शाफ्ट 2 आएगा, दिस इज नॉट कॉल्ड एज, इसे क्या कहेंगे हम सिंपली, दिस इज कॉल्ड एज नॉन प्रिज्मेटिक। दिस इज कॉल्ड एज नॉन प्रिज्मेटिक एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्मेटिक। याद रखना, whenever a member is having uniform cross section throughout the length, then this is called as prismatic। and in strength of material we assume all the members are prismatic। जिस भी member की हम स्टडी करने वाले हैं, whether it is var, whether it is column or beam, कोई भी member हो या shaft हो, कोई भी member हो, हम उसे prismatic ही assume करेंगे। करेक्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ऐसे नॉन प्रिज्मेटिक अगर सेक्शन हुआ तो इसकी वजह से यहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज की वजह से, अब्रप्ट चेंज होने की वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। करेक्ट है। इट मीन्स कि इस रीजन पे आपको स्ट्रेस ज्यादा मिलने वाला है और इस रीजन पे स्ट्रेस कम मिलने वाला है, तो डिफरेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट इन दिस केस यहाँ पे हमेशा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। करेक्ट है दोस्तों। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। करेक्ट है दोस्तों। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया व्हाट इज प्रिज्मेटिक शाफ्ट एंड व्हाट इज नॉन प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक मेंबर एंड व्हाट इज नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर, यस और नो? इज इट क्लियर?
ओके, नेक्स्ट assumptions की तरफ मूव करते हैं. फोर्थ वन, दैट इज द मेंबर इज सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोडिंग. एक्चुअली इन मैकेनिक्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ लोड. इज इट क्लियर? बेसिकली और भी डिटेल्स में लोड के बारे में आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों. यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं एक स्टैटिक लोड होगा और एक डायनामिक लोड होगा. डायनेमिक लोड होगा मीन्स a load which varying with respect to time, and static means load which is not varying with respect to time. तो एक्चुअल में इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वी अज्यूम ओनली स्टैटिक लोडिंग. द लोड इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम पीरियड, ऐसा नो थ्रू आउट द एनालिसिस. ये हमारा अजम्पशंस होगा. क्योंकि डायनेमिक लोड एक्ट होते ही दोस्तों ये ज्यादा सीवियर होता है एंड इट विल प्रोड्यूस वेरी वर्स्ट इफेक्ट, ऐसा नो. करेक्ट है. और यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबिलिटी अगेन इंक्रीज हो जाएगी एंड अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज थ्योरेटिकली. करेक्ट है. तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर सिंप्लिसिटी, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, फॉर थ्योरेटिकल एनालिसिस वी अज्यूम द ऑल लोड्स आर एक्टिंग ऑन द मेंबर इज स्टैटिक. ऑल्दो वो हमेशा पॉसिबल नहीं है. करेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल आपकी कार है, सपोज यू हैव अ कार और इससे आप ट्रेवल कर रहे हो. करेक्ट. तो जो आप रोड है, सपोज ये दिस इज अवर रोड, तो आपको हमेशा ऐसी यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी. कहीं आपको स्पीड ब्रेकर मिल जाएगा, कहीं यहाँ पे कुछ ऐसे गड्ढे मिल सकते हैं, ये सार नो. तो जब आपकी कार यहाँ से पास होगी तो क्या होगा, अचानक इसमें जर्क लगेगा, ऐसा नो, इम्पैक्ट लगेगा. करेक्ट है. लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की स्टडी करेंगे तो हम अज्यूम करेंगे कि जो भी शाफ्ट इसमें लगे हुए हैं वो कुछ इस तरीके से कार मूव हो रही है कि इन शाफ्ट में स्टैटिक लोड ही लगने वाला है. देर इज नो जर्क, देर इज नो डिसकंटिन्यूटीज ड्यूरिंग द फ्लो, ड्यूरिंग द मोशन, ये सार नो. करेक्ट है. तो दोस्तों यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे द मेंबर मस्ट बी सब्जेक्टेड टू स्टैटिक लोड ओनली, ये सार नो. करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन इज नेग्लेक्टेड. अब ये क्या है? करेक्ट है. तो सबसे पहले हम ट्रू स्ट्रेस के बारे में बात करें दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरली एग्जाम में एवरी ईयर आ ही जाता है कहीं ना कहीं. तो अगर मैं ट्रू स्ट्रेस की बात करूं दोस्तों, ट्रू स्ट्रेस की, तो सिंपली इफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा टी, तो इसे हम दोस्तों लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस लोड अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया. Yes or no? It means at every instant where you want to calculate stress, you just consider area as well as load both. Then this is called as true stress. While as if we talk about engineering stress, जो कि हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एज्यूम करने वाले, इंजीनियरिंग स्ट्रेस को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो सिंपली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, and it is nothing but this is load upon instantaneous load upon original area. Means while calculating engineering stress, we always consider original area. Yes or no? Initial area को ही consider करेंगे at every instant. Yes or no? किसी भी instant पे आपको stress calculate करने के लिए original area आप consider करोगे. This is the basic difference between true stress and true strain. Is that clear? Sorry, true stress and engineering stress. और यहीं पर अगर इन दोनों के बीच में हम रिलेशन लिखे दोस्तों, तो सिंपली आप लिख सकते हो दिस सिग्मा टी इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ 1 प्लस ई. कुछ ऐसा एक रिलेशन मिलेगा इन बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस. और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब मैं मेटल फॉर्मिंग दोस्तों आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पे हम लोग देखेंगे इसका कंप्लीट डेरिवेशन. वहीं पे हम ट्रू स्ट्रेन की बात करें दोस्तों, यू कैन सी हियर true strain, and suppose it is represented by epsilon, then this is nothing but इसे हम लिख सकते हैं algebraic sum of all the incremental strain. सिंपली क्या कहलाता है, algebraic sum of all the incremental strain, like this. इसे कह देते हैं दोस्तों हम ट्रू स्ट्रेन. एंड सिंपली आफ्टर सॉल्विंग दिस वी कैन गेट ln natural log LF final length upon
ओरिजिनल लेंथ, इसके रेशियो कहते हैं हम दोस्तों ट्रू स्ट्रेन। करेक्ट, मतलब आपको इनिशियल लेंथ पता हो और आफ्टर फाइनल लेंथ जिस भी इंस्टेंट में आपको ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर आपको फाइनल लेंथ पता है, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट ट्रू स्ट्रेन विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। यस और नो? Similarly, if we talk about engineering strain, then it can be written as simply LF minus L naught upon L naught. करेक्ट। अब अगर मैं इन दोनों में एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहूं तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, इट इज लुकिंग लाइक दिस, ln 1 प्लस ई। तो ये रिलेशन मिल गया ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन में। यस आर नो? करेक्ट है दोस्तों? ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन में कुछ ऐसा रिलेशन मिलेगा हमें। करेक्ट। तो अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे लिखा है कि द इफेक्ट ऑफ ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन आर नेग्लेक्टेड। ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। करेक्ट है। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? लेट्स सी हियर, एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रेन कंसीडर करूं, सपोज हियर वी हैव 0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.5 एंड 1। अब इसी के लिए अगर मैं ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू लिखूं दोस्तों, तो आप इस रिलेशन में ई की वैल्यू पुट करके हर एक स्ट्रेन के लिए, इंजीनियरिंग स्ट्रेन के लिए आप ट्रू स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हो। अप्रोक्सीमेटली मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हियर वी कैन गेट 0.00099, हियर वी कैन गेट 0049, here 0.0998, and here we can get 0.0498, here we can get 0.098, and here we can get 0.41. Let me check. ln 1.5, 0.0405, and with respect to 1 here 0.693। कुछ इस तरह की वैल्यूज मिलेंगी। करेक्ट है दोस्तों? करेक्ट। और यहाँ पे 0.095। So as we know that under elastic limit, this is elastic limit. Yeah, simply we can say elastic deformation. This is the range of elastic deformation. And this is the range of plastic deformation. Correct? Elastic deformation and plastic deformation. Then you can see in the elastic deformation zone, in the elastic deformation zone, in the elastic deformation zone, the difference in engineering strain and true strain is very less. Yes or no? You can see here less than 5%. Is it clear? But when we move towards the plastic deformation zone, the difference in elastic different in engineering and true strain is gradually increases like this. Yes or no? यहाँ पे 5% है, यहाँ पे लगभग 10%, यहाँ पे लगभग 30% के आसपास डिफरेंस है। यस और नो? तो दोस्तों याद रखना, इन द इलास्टिक जोन, इन द इलास्टिक जोन, इन द इलास्टिक जोन, the difference in engineering strain and true strain is very less. Yes or no? दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत कम है। Now you can see analysis of true strain is logarithmic analysis. Yes or no? But engineering strain क्या है? Linear analysis है। तो obviously इस डिफिकल्टी से बचने के लिए, simply here we assume इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हमने ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन को नेग्लेक्ट कर दिया। यस और नो? अब क्वेश्चन आता है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन में कंपैरिजन क्यों हो रहा है। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सपोज हियर वी हैव अ प्रिज्मेटिक बार लाइक दिस। एक प्रिज्मेटिक बार है
and it is subjected to a load P like this. And suppose its initial length is L0. And due to this load, this member may elongate it up to like this, up to जब इसकी लेंथ कितनी हो जाए, LF is equal to 2 times of L0. Correct? And in this case, if we write engineering strain, then simply it can be written as 2 times of L0 minus L0 upon L0, LF minus L0 upon L0. तो यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों 1. While as if we can write true strain, then simply it can be written as ln LF by L0. और इसमें अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं क्या आएगा 2 times of L0 upon L0. Therefore here we can get ln2. और इस ln2 की वैल्यू होती है 0.693. yes or no? करेक्ट. तो अब देखो दोनों हमें डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं. इंजीनियरिंग स्ट्रेन हमें 1 दे रहा है जबकि ट्रू स्ट्रेन हमें 0.693 दे रहा है. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि विच स्ट्रेन इज करेक्ट. अब दोनों में से कोई ना कोई एक तो स्ट्रेन रॉन्ग होगा. yes or no? तो हमने फिर से वही सेम आइडेंटिकल प्रिज्मेटिक बार कंसीडर किया. करेक्ट है. बट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग टेंसाइल लोड हियर आई एम गोइंग टू अप्लाई अ कंप्रेसिव लोड. टेंसाइल लोड की जगह हम क्या अप्लाई करें दोस्तों, यहाँ पे कंप्रेसिव लोड अप्लाई करें. एंड नाउ ड्यूरिंग दिस कंप्रेसिव लोड, सिंस हियर ओनली डायरेक्शन चेंजेस, yes or no, बाकी सब कुछ सेम है, लोड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ this one that is tensile strain, here we have compressive strain of equal magnitude, yes or no, as previous one minus 1, yes or no, and this is equal to LF minus L0 upon L0. अब हमें पता करना है कि for getting this strain how much final length will be happen, yes or no, obtained. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों LF by L0 minus 1. ये minus 1 इस minus 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सिंपली क्या बचा यहाँ पे LF by L0 is equal to 0. इट मीन्स ये कह रहा है कि LF क्या होना चाहिए, जीरो लेंथ होना चाहिए. इज इट क्लियर. वहीं पे अगर मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ LN2. अब माइनस ऑफ LN2 का मतलब क्या हुआ, LN2 टू द पावर माइनस 1. और सिंपली मैं इसको लिख सकता हूँ LN1 by 2. yes or no? तो ये क्या होना चाहिए, LN1 by 2 इज इक्वल टू LN LF by L0. yes or no? तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, LF by L0 इज इक्वल टू 1 by 2. और सिंपली वी कैन राइट LF इज इक्वल टू L0 by 2. मतलब अगर इस मेंबर को हाफ लेंथ से हम कंप्रेस कर दें तो हमें वही सेम स्ट्रेन मिलेगा जो प्रीवियस केस में मिला था. ये सामने. तो अब आप मुझे बताओ कि इंजीनियरिंग एंड ट्रू स्ट्रेन में कौन सा स्ट्रेन करेक्ट है. तो ऑब्वियसली ये जीरो लेंथ करना पॉसिबल नहीं है. किसी भी कंडीशन में किसी भी मेंबर को आप कंप्रेस करके उसकी लेंथ को जीरो नहीं कर सकते. यस और नो. इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन का रिजल्ट है दैट वन इज नॉट एक्यूरेट, नॉट करेक्ट. जो हमें ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन रिजल्ट दे रहा है, मैं सिंपली यहां पे लिख देता हूं द रिजल्ट गिवन बाय true stress and strain is accurate over engineering stress and strain. yes or no? करेक्ट है दोस्तों. इसके बावजूद अब हमें पता चल गया है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है, फिर भी हम लोग एज्यूम करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं. और नेग्लेक्ट क्यों कर देते हैं, उसका रीजन सिर्फ एक मात्र है कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन है वो लीनियर स्टडी कर सकते हैं हम उसकी, जबकि ट्रू स्ट्रेन स्ट्रेन के जो एनालिसिस होगा वो लॉगरिथमिक होगा. और चूंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने पहले ही अजम्पशन ले लिया है कि जो भी लोडिंग होगी वो अंडर इलास्टिक लिमिट होगी, तो इलास्टिक लिमिट में दोनों ही स्ट्रेन में डिफरेंस बहुत कम है, लेस देन 5% है. तो इतना एरर कंसिडरेबल है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. यस और नो. इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखे द इफेक्ट ऑफ ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन्स आर नेग्लेक्टेड. करेक्ट है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है द मेंबर इज अज्यूम्ड टू बी डिफॉर्मेबल. ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम स्टडी ही तभी कर पाएंगे जब हमारा मटेरियल कैसा हो, डिफॉर्मेबल मटेरियल हो.
करेक्ट है। डिफॉर्मेबल मटेरियल, अ मटेरियल इज सेड टू बी डिफॉर्मेबल व्हेन द रिलेटिव पोजीशन बिटवीन द पार्टिकल्स बिफोर एंड आफ्टर द डिफॉर्मेशन विल चेंज, यस और नो। और ये ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में बता चुका हूं, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ बॉडी फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड। तो दोस्तों अगर मैं इन फोर्स की बात करूं तो जनरली हियर वी हैव टू टाइप्स ऑफ फोर्स। करेक्ट, एक होता है हमारा बॉडी फोर्स, इज इट क्लियर? और दूसरा होता है दोस्तों सरफेस फोर्स। बॉडी फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई वॉल्यूम, वाई वॉल्यूम जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं बॉडी फोर्स। और जो बाई एरिया जो फोर्स होता है उसे कहते हैं हम सरफेस फोर्स। मतलब फॉर एग्जांपल, अब इसका कहने का मतलब क्या है, बाई वॉल्यूम का मतलब है सेल्फ वेट, सेल्फ वेट। करेक्ट है। सपोज यू कैन सी हियर, here we have any structural member like this, कोई भी structural member है like this, suppose ये beam है, क्या है, this is beam, और यहाँ पे आप जाके क्या हुए, यहाँ पे खड़े हो गए। करेक्ट है। तो अब बहुत छोटे से एरिया में आपके बॉडी का सारा वेट इसमें एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो वेट एक्ट हो रहा है, मैं सिंपली इस मेंबर को, इस पर्सन को हटा के इसकी जगह पे मैं एक ऐसा पॉइंट लोड अप्लाई कर सकता हूँ विच इज पी इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस बॉडी। इस मेंबर का जो वेट है, सपोज ये 100 न्यूटन्स का है, कुछ ऐसा लिख सकता हो क्या? तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है, जो एक्सटर्नली फोर्स एक्ट हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर, हमारा हम स्टडी किसकी करने वाले हैं, इस बीम की स्टडी करने वाले हैं। तो इस बीम में एक्सटर्नली क्या फोर्स एक्ट हो रहा है, दीज आर कॉल्ड एज सरफेस फोर्स, जो कि विथ रिस्पेक्ट टू एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये सर नो, इट में भी पॉइंट लोड और इट में भी डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। करेक्ट है। या तो आप इसके ऊपर खड़े हो या आप इसके ऊपर लेट जाओ, तो लेट जाओगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो जाएगा, एक पॉइंट पे खड़े रहोगे तो ये कैसा लोड रहेगा, पॉइंट लोड होगा। ये सर नो। तो बाई एरिया जो वेट होता है, बाई एरिया जो लोड होता है, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस फोर्स। और अगर मैं इस बॉडी का इटसेल्फ वेट बताऊं, सपोज इस बॉडी का वेट W है, तो ये जो W है, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ वेट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड एज बॉडी फोर्स। तो force which is distributed with respect to volume is called as body force, and force which is distributed with respect to area, that is called as surface force। और दोस्तों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि आवर बॉडी इज मासलेस, वेटलेस। ये सानो, हम हमेशा क्या करते हैं, बॉडी का वेट निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे आप बीम की स्टडी करोगे तो बीम के वेट को आप नेग्लेक्ट कर दोगे। करेक्ट है। बॉडी फोर्स को आप नेग्लेक्ट कर देते हो, इसे आप नेग्लेक्ट कर देते हो, सिर्फ सरफेस फोर्स को ही कंसीडर करते हैं स्टडी करने के लिए। यस आर नो, दिस इज अगेन अवर वेरी इंपॉर्टेंट अजम्पशंस। करेक्ट। अब लास्ट में आता है सेंट विनाइट प्रिंसिपल। दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि सपोज वी हैव अ मेंबर लाइक दिस, सपोज वी हैव अ मेंबर लाइक दिस, suppose we have a member like this, and if it is subjected to a concentrated load, yes or no, suppose यहाँ पे क्या लग रहा है, concentrated load लग रहा है, and this is a fixed end like this is centroidal line. Now if it is subjected to, if this member is subjected to a concentrated load at this point, then what will happen? Due to this concentrated load जहां पे भी act होगा, and suppose इसके क्रॉस सेक्शन को दोस्तों अगर मैं बताऊं, it is looking like this is the cross section of this member. करेक्ट। और दिस इज विड्थ एंड दिस इज थिकनेस, कुछ ऐसा हमारे पास मेंबर है, एंड दिस इज लेंथ। तो दोस्तों इफ आई रिप्रेजेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन,
अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेल स्ट्रेस की बात करूं तो फोर्स अपॉन एरिया होगा एंड दिस इज एवरेज स्ट्रेस, यस और नो। और अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे ये लोड एक्ट हो रहा है इटसेल्फ, यहीं पे अगर मैं स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन शो करूं देन इट इज लुकिंग लाइक दिस, करेक्ट। जिस पॉइंट पे लोड एक्ट हो रहा है वहां पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम द लोडिंग पॉइंट मूव करेंगे तो स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होता चले आएगा। तो यू कैन सी हियर दिस इज मैक्सिमम लोड, यस और नो, दिस इज मैक्सिमम लोड एंड दिस इज एवरेज लोड, यस और नो। तो आप देखो कि एवरेज और मैक्सिमम में ह्यूज डिफरेंस है, यस और नो। दिस इज सिग्मा ए एंड दिस इज सिग्मा एम मैक्सिमम, और यहाँ पे लगभग होगा 2.13 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ, करेक्ट है दोस्तों, आप इसके लिए लड़ने मत लगना, करेक्ट है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू लगभग डिस्ट्रीब्यूशन आप बहुत ज्यादा देख रहे हो, डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, करेक्ट है। क्यों डिस्टेंस डिस्टेंस ज्यादा है, तो जब भी दोस्तों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई लोड एक्ट होगा तो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन अ पॉइंट वेयर दिस लोड इज एक्टिंग इज मैग्नीफाइड, यस और नो, बहुत ज्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा, करेक्ट, एवरेज वैल्यू से, करेक्ट। लेकिन जैसे जैसे हम मूव करेंगे एंड वी रीचेस एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, कहाँ पे दोस्तों, इस पर्टिकुलर पॉइंट से जैसे हम 3/2 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सपोज 3/2 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन, लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब विड्थ और थिकनेस में अगर हम कंपेयर करें तो विड्थ इज ग्रेटर देन थिकनेस, तो यहाँ पे क्या होगा, 3/2 टाइम्स विड्थ। इस डिस्टेंस पे इस लोडिंग पॉइंट से जैसे आप मूव करोगे तो यहाँ पे जो आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है क्लोज टू यूनिफॉर्म मिलने वाला है, ये सारनो, कुछ इस तरीके का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारनो थ्रू द क्रॉस सेक्शन, लाइक दिस। मतलब जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट है इस डिस्टेंस में आते आते क्या हो जाएगा दोस्तों, नलीफाई हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये सारनो, उसका असर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो सेंट विनार्ड ने कहा कि ये डिस्टेंस जो है दिस इज 3/2 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन फ्रॉम लोडिंग पॉइंट से 3/2 टाइम्स ऑफ लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन में हमें एक क्रॉस सेक्शन मिलेगा जहां पे स्ट्रेस जो होगी मैक्सिमम स्ट्रेस इज वेरी क्लोज टू एवरेज स्ट्रेस, यस आर नो, और लगभग यूनिफॉर्म होगा, यस आर नो। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम इस इक्वेशन को फोर्स अपॉन एरिया इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर लोकेशन में हम इस इक्वेशन को अप्लाई नहीं कर सकते, यस आर नो, करेक्ट है। तो यही सेंट विनार्ड ने कहा कि the stress distribution is uniform throughout stress distribution is uniform at a distance of 3/2 times of largest lateral dimension, and at this position we can apply sigma is equal to load upon area, axial stress is equal to load upon area directly, yes or no, and it is assumed or it is valid throughout the length हम इसे assume कर लेंगे कि ये हर जगह वैलिड है, जबकि एक्चुअल में है नहीं। तो जब भी हम एक्सेल स्ट्रेस का एनालिसिस करेंगे तो या तो आप अज्यूम कर लोगे कि जो भी हम ये इक्वेशन लिखने जा रहे हैं वो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लिखने जा रहे हैं, यस और नो, करेक्ट है। अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया अगर आप किसी भी पोजिशन में जाओगे तो आपको स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं मिलने वाला, करेक्ट है दोस्तों। तो ये हमारे अजम्पशंस है, करेक्ट। तो हमने दोस्तों आपने देखा कि इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को स्टडी करने के लिए हमने कुछ इस तरीके के अजम्पशंस को फॉलो किए जिसके बेसिस पर हम इजीली स्टडी कर सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, करेक्ट है। तो चलिए फिर यहीं पे इस लेक्चर को दोस्तों एंड करूंगा, करेक्ट है। आप हमें इससे टेक्यो फैकल्टी चैनल में आप देखते रहिए, टेक्यो गेट चैनल में, करेक्ट है। और एवरीडे आपको टाइम टू टाइम लेक्चर मिलते रहेंगे दोस्तों, आप रेगुलर देखिए, कोई भी लेक्चर मिस मत करिए, करेक्ट। अगर एक भी लेक्चर आपका मिस होता है तो आगे उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। और
आपको अगर कोर्स मटेरियल चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल में भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगी। तो चलिए फिर यहीं पे मैं इस लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड गुड डे।